Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are starting the chapter number 3 of the first year. So first, that definition of the distance. What is the distance? It is the actual path covered by a moving particle in a given interval of the time is known as a distance. क्या मतलब है? अगर इसको हम देखें, it is if a particle starts from A and reach to C through the distance B as shown in the figure. Let's suppose one particle starts from here. It starts from A and it reaches at C through point B. A particle starts from A to B and then it reaches to C as shown in the figure. Then the distance traveled by the particle, let's suppose A to B, this one is 4 meter, and B to C, this one is 3 meter. You may say the total distance from A to C, the particle distance is equal to AB plus BC. It means 4 meter plus 3 meter. That means the 7 meter distance is covered by the particle. So when we talk about the A to C, that's not a particular one direction. The direction is being changed from one to another. There's no particular direction. That means the distance is a scalar quantity. The dimension of the distance, you know that the distance basically is the length. That means you may say the dimension of the distance is L. You may write it LMT, and over here M naught and T naught. So you may show the dimension like this as well. So this one is the distance. But when we talk about the displacement is the change in a position of a vector. A vector joining initial to the final position is known as a displacement. Let's suppose in the same way, just we have given the example from A to B it covers 4 meter, and from B to C it covers 3 meters. So this one is a 7 distance, not displacement. Displacement means the minimum distance from initial position to final position. That means this one. It is a particular direction, single direction. So this one is a displacement. This one is displacement, and that can be found by the formula. So it would be 5 meters, and it has a direction from A to C as well. So its dimension will be the same. Dimension will be the L, and its unit is in SI system is a meter. After that, when we talk about the dear student, when we talk about the particular, let's suppose a body in a plane, XY plane. A body starts from A and it first move across like this and it reach over here. It starts from A and it reach at B. Let's suppose this one is the initial point, this one is the final. So this one is the shortest distance. This shortest path is known as a displacement, while this one is the actual path. So actual path is a distance. Remember, shortest distance between the initial and the final position is known as the displacement, and the actual path traveled by the object is known as distance. So distance may not have a particular direction. It may have or it may not have. So that's why it's a scalar quantity, but for the displacement it's always having a single direction, a particular direction. That's why it's a vector quantity. उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के वाले से जो है डायरेक्ट है, उसकी तरफ अगर हम जाएं, पहली बात अगर आप यहाँ पे देखेंगे, the magnitude of the displacement is equal to the minimum possible distance between two positions. डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिनिमम डिस्टेंस के बराबर होता है. कैसे? सपोज करें मिनिमम डिस्टेंस क्या होता है, यानी इन अ सिंगल डायरेक्शन. सो द डिस्टेंस, जो डिस्टेंस आपका है
ये आपका जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेदर इज equal or greater than the magnitude of the displacement. Remember one thing, जो डिस्टेंस होता है वो या तो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है या उसके मैग्नीट्यूड के बराबर होता है. तो याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो नोन एज अ डिस्टेंस फॉर अ मूविंग बॉडी. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, सेकंड पॉइंट की तरफ अगर आप देखेंगे, सेकंड पॉइंट आप देखें, if for a moving particle the distance can never be negative or a zero. अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो जो उसका आपके पास डिस्टेंस होगा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता. तो मूव करेगी तो पोजीशन चेंज होगी और ना ही वो नेगेटिव हो सकता है. when the displacement can be zero, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है. अगर सपोज करें बॉडी मूव करके दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा? जीरो. जीरो डिस्प्लेसमेंट मीन द बॉडी स्टार्ट्स after the motion has come back to its initial position. तो याद रखिएगा, distance is always, distance of a moving body is always greater than zero, but the displacement may be greater, may be equal or less than zero. So इसी तरह से अगर एक MCQs की तरफ अगर आप देखें, which of the following is a true? ऑप्शन फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस या तो ग्रेटर होता है या इक्वल होता है. अभी हमने ये पॉइंट की भी, अभी आपने खुद सोचना है. फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट द डिस्टेंस कैन नेवर बी. थर्ड ऑप्शन में देखिए, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कैन नॉट बी लेस देन वन. वन से कम नहीं हो सकता क्योंकि डिस्टेंस हमेशा ग्रेटर होता है. So all of these, option D is a correct answer. अच्छा, एक और प्रॉब्लम हम अगर यहाँ पे देखें, a man goes 10 meter towards the north, then 20 meter towards the east, then what will be the displacement? एक शख्स है जो, अगर आप डायरेक्शंस देखें यहाँ पे, this one is the north, south, east और west. इसमें कह रहा man goes, क्या लिखा हुआ? a man goes 10 meter towards the north. ऐसे वो 10 मीटर कहाँ जा रहा है? नॉर्थ की तरफ. ये जनाब 10 मीटर आ गया नॉर्थ की तरफ. देन इट गोज 20 मीटर्स टुवर्ड्स द ईस्ट, और फिर ये 20 मीटर इस तरफ चला गया ईस्ट की तरफ. तो अब देखिए, इनिशियल पोजीशन आपकी है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब है आपके पास इनिशियल पोजीशन सपोज करें ए है, ये बी है और ये सी है. तो ए से लेकर सी तक तो ये आपका क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मालूम करना हो तो ये देखें, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपके पास क्या हो गया? 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का रूट आप करेंगे तो 10 का स्क्वायर आपके पास 100 हो गया. ये 400 आपके पास. अब अगर करेंगे तो 500 हो जाएगा. उसका मतलब है 10 आउट हो जाएगा, 10 रेडिकल 5. दिस वन इज द डिस्प्लेसमेंट. इसको अगर आप हल करेंगे तो आपके पास जो है 5 का स्क्वायर रूट मालूम करें, 22.5 आंसर आ जाएगा. ऑप्शन 22.5 मीटर. दिस वन इज आंसर. डियर स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद अब हम जो आ रहे हैं वो है स्पीड. रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज द स्पीड. क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड. सो इसका डायमेंशन आपके पास क्या है? स्पीड. स्पीड जो है उसका फार्मूला क्या हो जाता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया. इसका मतलब इसका डायमेंशन ऑफ स्पीड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा? डायमेंशन आपके पास देखिए ना, डिस्टेंस का यूनिट क्या है? एल, और यहाँ पे टी इनवर्स हो गया. एम नहीं है, एम नॉट लिख सकते हैं, या ना भी लिखें तब भी आपके पास करेक्ट आंसर है. और यूनिट इसके क्या होता है? एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड है, सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, सीजीएस में फीट पर सेकंड भी हो सकता है, एफपीएस सिस्टम में. सो दिस वन इज द स्पीड. उसके बाद है वेलोसिटी. वेलोसिटी की बात करें, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम इन अ पर्टिकुलर डेफिनेशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. वेलोसिटी की बात करें तो इसकी 2-3 तरह से हम डेफिनेशंस कर सकते हैं.
The distance traveled by a body in a unit time is called, in a particular direction is called velocity. या आप कह सकते हैं rate of change of displacement is known as velocity. velocity और speed में फर्क क्या था? वहां पे distance था, यहाँ पे क्या है? displacement है. It has a particular direction. इसका मतलब ये क्या है? आपके पास एक vector quantity है. या आप कह सकते हैं rate of change of displacement is called velocity. Its unit in SI system is meter per second. Dimension वही है जो speed का dimension है. If a body travels a distance in a 1 second in a particular direction, that's known as the velocity. Velocity का formula क्या है? V is equal to S upon T. So velocity के बाद अगर average velocity की बात करें, the total displacement divided by the total time taken by a body is known as average velocity. या आप दूसरे वर्ड्स में ऐसे भी कह सकते हैं, if the change in a displacement is delta s and change in a time is delta t, then the velocity is known as average. ये दोनों ही फार्मूले हम यूज करते हैं. उसके बाद एवरेज वेलोसिटी के बाद आपके पास आ जाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. वर्ड इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? पल या लम्हा. यानी ऐसा डिस्प्लेसमेंट जो कोई बॉडी बहुत ही कम टाइम में कवर करे ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं. इंस्टेंट का मतलब क्या होता है? पल या घड़ी. मींस द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ यूनिट टाइम. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन करें, इट इज द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज इंस्टेंट टू इंस्टेंट, देन द वेलोसिटी इज नोन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को शो कैसे करते हैं? यहाँ पे INS लिखते हैं, क्योंकि टाइम इसमें बहुत ही कम होता है, इतना कम कि उससे ज्यादा जो है पॉसिबल ना हो. तो फिर इसका फॉर्मूला लिमिट में आता है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो या अप्रोचेस टू जीरो. उसका मतलब टाइम बहुत ही कम है, उसमें जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इसमें टाइम जो होता है क्या होता है? बहुत ही शॉर्ट होता है. The value of the time interval approaches to zero means that the time is as small as it can be. उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है, सेकंड आपका क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमने पढ़ ली. और थर्ड आपके पास है यूनिफॉर्म वेलोसिटी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप सपोज करें एक बॉडी यहां से ए से स्टार्ट हो रही है, बी पे जा रही है, ए से बी पे, और 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किए. फिर बॉडी ने बी से सी पे गई, फिर 1 सेकंड में 2 मीटर कवर किए. फिर सी से बॉडी डी पे गई और अगेन 1 सेकंड में 2 मीटर. तो आप देख रहे हैं when a body covers the equal displacements in an equal time of the interval, such velocity of a body is known as a uniform velocity. और एक और बात, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद फोर्थ जो आपके पास है वो है वेरिएबल वेलोसिटी. फोर्थ आपके पास क्या है? वेरिएबल वेलोसिटी, या जिसको हम नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी कहते हैं. लेट सपोज उसी तरह से अगर एग्जांपल लें, ए से जब बी पे गई 1 सेकंड में उसने 2 मीटर कवर की. फिर जब अगर सेकंड में उसने 3 मीटर कवर कर ली. नेक्स्ट बी सी से जब डी में गई, पहले ए से बी में 2 मीटर कवर किए, फिर बी से सी में 3 मीटर, फिर आपके पास 2 मीटर कर लिए, यानी डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए. व्हेन अ बॉडी कवर्स द डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट इन अ सेम टाइम ऑफ द इंटरवल, देन द बॉडी सेड टू बी इन अ वेरिएबल वेलोसिटी. याद रखिएगा, या तो डिस्प्लेसमेंट अगर डिफरेंट लोगे तो टाइम इंटरवल सेम होगा, और अगर आपके डिस्प्लेसमेंट सेम है तो टाइम अगर चेंज है तब भी उसको हम क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल वेलोसिटी कहेंगे. सो दैट वाज द फोर्थ टाइप. वेलोसिटी के टाइप के बाद देखें एक्सेलरेशन क्या है. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ वेरिएबल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड. या आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो अब हमारा टॉपिक क्या है? एक्सेलरेशन.
एक्सेलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मींस डेल्टा v अपॉन डेल्टा t दैट्स इक्वल टू एक्सेलरेशन. सो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. सो यहां पे अगर आप देखेंगे if the velocity is changed by delta v in a time interval is delta t, then delta v upon delta t is known as acceleration. ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका ऐसा यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और इसका डायमेंशन आपके पास क्या है? एल टी पावर -2 है, या आप इसको अगर पूरे फॉर्म में लिखना चाहें तो एल एम टी करके, एल है आपके पास, एम मौजूद नहीं है, -2. दिस वन इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन के टाइप्स की तरफ अगर हम जाएं, डिस्टेंस एक्सेलरेशन के टाइप्स की तरफ जाएं तो पहला है एवरेज. फर्स्ट है एवरेज एक्सेलरेशन. It can be calculated when the total change in a velocity is divided by the total time. Means average acceleration is equal to delta v upon delta t. The formula will be the same basically. उसके बाद है instantaneous acceleration. If the time is very small, then the average acceleration of a body is said to be an instantaneous acceleration. Second type का है instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration क्या है? It is that if the time is very small, then the average acceleration of the body is said to be an instantaneous acceleration. It is given by acceleration का formula क्या है? Instantaneous acceleration के लिए INS limit delta t time approaches to 0 and change in a velocity delta v upon delta t. So this one is the formula for the instantaneous acceleration. इसके बाद आपके पास अगर देखें, याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइप जो आपका है, नेक्स्ट टाइप आपके पास है, थर्ड टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देखिए, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जब वेलोसिटी में चेंज आए. when the change in a velocity is a uniform, या आप कह सकते हैं कि जब किसी मूविंग बॉडी की एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों बराबर हों, तो फिर आपके पास जो बॉडी में एक्सेलरेशन है वो कौन सी है? यूनिफॉर्म है. दैट मीन्स इफ द चेंज आफ्टर एवरी सेकंड इन अ वेलोसिटी इज द सेम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के हवाले से अगर एक चीज देखी जाए तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन जब आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन की होती है तो आप कह सकते हैं कि इस वक्त बॉडी की एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रही. दैट मीन्स दिस वन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. थर्ड के बाद अगर फोर्थ की तरफ अगर आप जाएं तो फोर्थ में आपके पास है पॉजिटिव एक्सेलरेशन. क्या है? इफ द चेंज इन अ वेलोसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज, then the acceleration so produced is known as positive acceleration. Positive acceleration. Positive acceleration क्या है? जब चेंज इंक्रीज होती जाए तो पॉजिटिव है, और नेगेटिव या उसको क्या कहते हैं? रिटार्डेशन, या उसको क्या कहते हैं? डेसिलेशन. जब चेंज इन वेलोसिटी इज गोइंग, जो डिक्रीज होती जाए, जब वेलोसिटी में चेंज डिक्रीज होती जाए तो दैट्स नोन एज ए नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, या इसको डेसिलेशन भी कहते हैं. सो दैट वाज द टाइप्स ऑफ द एक्सेलरेशन. स्टूडेंट्स, आमतौर पे हमारे पास जो है सिंटी टेस्ट के हवाले से कुछ एमसीक्यूज आ जाते हैं जिसमें एवरेज स्पीड मालूम करने के हवाले से होता है. डिफरेंट फार्मूलेस दिए जाते हैं. एवरेज स्पीड मालूम करने के लिए क्या था? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम. तो ये जो है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज स्पीड कवर करने के लिए, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब ये जो आपके पास जो एवरेज स्पीड आती है, ये किस तरह से हम मालूम कर सकते हैं? तो पहला मेथड आप देखें, अगर डिस्टेंसेस सेम दिए जाए, सपोज करें बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम हैदराबाद टू कराची इन 1 hour and rest off in 1.5 hour। अब देखिए आप इसमें डिस्टेंस, हाफ ऑफ द डिस्टेंस वर्ड का है, मैंने क्या कहा है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस का है, टाइम इज नॉट इक्वल। इसमें आपने क्या कहा, पहली कंडीशन क्या है, व्हेन s1 इज इक्वल टू s2, अगर डिस्टेंस बराबर दिया जाए और टाइम t1 इज नॉट इक्वल टू t2। if the time interval is not equal but the distance is same, then the formula for the average velocity is equal to 2v1 v2 upon v1 plus v2। एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी जो है किसके बराबर होता है, याद रखना। क्या कहा मैंने, हाफ ऑफ द डिस्टेंस का दे, यानी डिस्टेंस इक्वल दी जाए। सेकंड, अगर आपके पास s1 इज नॉट इक्वल टू s2, हाफ ऑफ द टाइम का वर्ड कहा जाए, बट टाइम t1 इज इक्वल टू t2, तो फिर आपके पास जो एवरेज स्पीड का फार्मूला या एवरेज वेलोसिटी का जो फार्मूला होगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, v1 प्लस v2 अपॉन 2। और अगर इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट कंडीशन में इफ s1 is equal to s2 and t1 is equal to t2, तो फिर आपके पास एवरेज स्पीड is always equal to instantaneous speed। That means its motion is uniform, they are moving with a uniform speed। So dear students, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए पहला प्रॉब्लम आप चेक करें, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन मूव्स फ्रॉम लाहौर टू इस्लामाबाद। एक शख्स है जो लाहौर से कहां जा रहा है, इस्लामाबाद, विद ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। जब वो लाहौर से इस्लामाबाद जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड रिटर्न्स बैक टू लाहौर, और इस्लामाबाद से वापस कहां आ जाता है, लाहौर आता है, एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। व्हाट विल बी इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी रिस्पेक्टिवली। चार ऑप्शंस आप देखें, 48 किलोमीटर पर आवर और 0 किलोमीटर, 48 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर, 0 किलोमीटर पर आवर एंड 48 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर। तो याद रखिएगा पहली बात तो क्या कह रहा है, लाहौर से इस्लामाबाद गया, जितना डिस्टेंस जाते हुए किया उतना ही डिस्टेंस वापस आने में, डिस्टेंस इज द सेम, लेकिन स्पीड क्योंकि चेंज थी तो जाहिर है पहले जब जा रहा था तो 60 किलोमीटर पर ऐसे जा रहा था, इसका मतलब जल्दी पहुंचा होगा, वापसी में स्पीड कम थी तो टाइम चेंज हो गया। इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन जो मैंने आपको बताई थी, सबसे पहले तो आप इसकी एवरेज आप देखें, एवरेज स्पीड का फार्मूला हमने किया था 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ये हमने फार्मूला किया था। तो इसमें अगर आप वैल्यू रखेंगे 2 इंटू 60 इंटू 40 होल डिवाइडेड बाय 60 प्लस 40, तो आपके पास ये हो जाएगा, ये आपके पास हो गया 4800 डिवाइडेड बाय 100, ये दो जीरो कैंसिल, मीन्स 48 किलोमीटर पर आवर। ये तो आपकी आ गई एवरेज स्पीड, पहला ऑप्शन तो हमारे पास, यानी 48 तो होगा। अब हमें ये देखना है कि ऑप्शन कौन सा होना चाहिए। अब ऑप्शन 48 आप देखें दो जगहों पे आ रहा है, ए में भी आ रहा है, बी में भी आ रहा है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, शुरू कहां से हुए थे, लाहौर से इस्लामाबाद गए, इनिशियल पॉइंट क्या थी, लाहौर,
फिर लाहौर से जा इस्लामाबाद से वापस कहाँ पे आगे लाओगे, मीन्स इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या कॉन्साइड कर रहे हैं एक ही जगह पे, दैट मीन्स द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। मीन्स आपके पास ये तो आपके पास क्या आ गई, और एवरेज वेलोसिटी जो आपके पास क्या हो गई, जीरो। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अब अगर एक और चीज की तरफ हम जाएं, इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए इक्वेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन का है। मोशन के हवाले से दो टाइप्स, एक यूनिफॉर्म मोशन, एक एक्सीलरेटेड मोशन या यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। एक वो मोशन जिसमें एक्सीलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन। तो उसकी अगर यूनिफॉर्म मोशन की बात करें तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर आपके पास एक ही फार्मूला आता है स्पीड का, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। लेकिन अगर एक्सीलरेटेड मोशन है तो आपके पास थ्री इक्वेशन जो आप पढ़कर आए हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन आपके पास है एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड द थर्ड इक्वेशन इज 2as is equal to vf square minus vi square. So these are known as the equations of, this one is the equation of the uniform motion and these are the equation of the uniform accelerated motion जिसमें acceleration मौजूद हो, that means there is a change in a velocity. Dear students, 2 से 3 पॉइंट्स इसमें अगर हम नोट करें, if the body starts from the rest then its initial velocity will be 0. सेकेंड पॉइंट देखें बोर्ड पे, इफ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के हाल से, तो 2 से 3 पॉइंट्स ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0. इफ अ मूविंग बॉडी स्टॉप्स देन इट्स फाइनल वेलोसिटी विल बी 0. इफ द बॉडी इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0. उसके बाद आता है मोशन अंडर द ग्रेविटी या फ्री फॉल मोशन। जब भी किसी बॉडी को रिलीज किया जाए एटमॉस्फेयर में तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करते हैं अपने सेंटर की तरफ। एज द फोर्स इज अप्लाइड बाय द अर्थ, दैट फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स, एंड द सो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन अ बॉडी इज नोन एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। यानी ऐसी बॉडी जो अंडर द ग्रेविटी मूव करे उसको हम क्या कहते हैं, मोशन अंडर द ग्रेविटी कहते हैं। और उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। उसको स्मॉल g से शो करते हैं और इसकी वैल्यू एसआई सिस्टम में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, सीजीएस में 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर ली जाती है, एफपी सिस्टम में बेसिकली 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर है, लेकिन आमतौर पर हम 32 इसको यूज करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और जो पॉइंट मास किसको कहते हैं। देखिए हर बॉडी जिसमें मैटर है उसको, उसमें मास तो है, क्वांटिटी ऑफ द मैटर को मास कहते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, जो डिस्टेंस कवर होता है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी, द मास इज वेरी वेरी स्मॉल, देन दोज ऑब्जेक्ट्स आर बीइंग कंसीडर्ड एज अ डायमेंशनलेस, और ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट मास कहते हैं। देखिए आप यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप देखें पॉइंट मास क्या है। An object can be considered as a point object if during the motion in a given time it covers the distance much greater than its own size. Object with a 0 dimension considered as a point mass. So the point mass is a mathematical concept to simplify the problems only. ये problems को solve करने के वाले से हम use करते हैं। Dear students, next topic आपका है Newton's laws of the motion. So first law of Newton को अगर आप देखें, every body continues its state of the rest or a uniform motion in a straight line provided no unbalanced force act on it. या आप ऐसे भी कह सकते हैं, this law states that if a body is in a motion or a rest, it will remain in the state of the rest or the motion until external force is not applied on it. You know that a body continued to be in the state of the rest or of the uniform motion along a straight line unless it is
not acted upon by some external force to change the state. Until force is not applied, it will continue its state. So आप देखें फर्स्ट लॉ में दो चीजें हमने कही, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन से मूव करे तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी जब तक कि कोई और फोर्स उसके अप्लाई ना हो। और बिल्कुल इसी तरह से एक प्रॉपर्टी भी है मैटर की जिसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया क्या है? एज द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू अपोज एनी चेंज in their state is called the inertia. Hence the first law of motion is also known as law of the inertia. अब देखें inertia के तीन टाइप्स है। एक inertia of rest है। क्या होता है? It is the inability of a body to change by itself. It's state of the rest. अगर कोई बॉडी रेस्ट में वो खुद से उस स्टेट को चेंज नहीं कर सकता तो ऐसे inertia को हम क्या कहते हैं? Inertia of the rest कहते हैं। This means a body at rest remains at the rest and cannot start moving by its own. उसके बाद inertia of the motion है, it is the inability of a body to change its state of the uniform motion. फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो अगर बॉडी मूव करे तो मूव करती रहेगी, तो इसको क्या कहते हैं? inertia of motion कहते हैं। inertia of the direction, its inability of a body to change by itself the direction of the motion. ये अपने मोशन की डायरेक्शन भी खुद से नहीं चेंज कर सकता, एक्सटर्नली फोर्स ही उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। सो दिस इज नोन एज inertia of डायरेक्शन। उसके बाद अगर हम सेकंड लॉ की बात करें, ये जो पहला लॉ हमने पढ़ा ये बेसिक हमें कॉन्सेप्ट देता है कि चेंज कैसे लाएं, किससे लाएं? फोर्स से। तो इस फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। सेकंड लॉ आपको ये जो फोर्स है इसको मेजर कैसे करें, इसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करें, यानी इसके बारे में बताता है सेकंड लॉ। क्या कहता है? द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इज आल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द फोर्स। The second law is also known as the law of acceleration. It explains the effect of the force. Effect कैसे? When an unbalanced force acts upon a body, an acceleration is produced. The magnitude of the acceleration produced is directly proportional to the magnitude of the force, and this one is inversely proportional to the mass. So combining these two relations, F upon m, so A is equal to K into F upon m. So you may write here F is equal to AM because the value of the K is 1 in a इससे क्या हुआ, हमने F is equal to MA एक फार्मूला बनाया, इससे हमने फोर्स को मेजर किया। So you may say in this law we can measure the force. So force का यूनिट क्या रखा गया? न्यूटन। कि जब कोई बॉडी जिसका मास 1 किलोग्राम हो उस पर जो फोर्स लगाई जाए और उसमें 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे तो ऐसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, अब अगर हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ जाएं तो बहुत सिंपल सा है। टू एवरी एक्शन there is always an equal and opposite reaction. The two forces of the action and the reactions of the two different bodies are given by the following examples. याद रखिएगा कि एक ही बॉडी नहीं, जब दो डिफरेंट बॉडीज इंटरेक्ट करते हैं, जो पहली बॉडी फोर्स अप्लाई करेगी उसको हम क्या कहेंगे? एक्शन। जो दूसरी बॉडी रिस्पॉन्स देगी उसको हम क्या कहेंगे? रिएक्शन कहेंगे। वो कह रहा है इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होता है लेकिन डायरेक्शन उनकी क्या होती है? अपोजिट होती है। जैसे सपोज करें, एग्जांपल्स की तरफ जाएं, द बर्ड्स फ्लाई इनटू द एयर ड्यू टू द एक्शन एंड द रिएक्शन। वो अपने विंग्स से क्या करते हैं? एयर को ऐसे पीछे करते हैं और एयर उसको आगे की तरफ धकेलती है। ये जिस तरह से हम जमीन पे चलते हैं, हम पाँव से जमीन को पीछे धकेलते हैं और जमीन हमको एज ए रिएक्शन आगे की तरफ मूव कराती है। सो दिस इज नोन एज। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट